30 एमएलए भी जिताएंगे, सीएम वहीं का आके बैठेगा सिर पे। तो ये तो बात जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। So this continues. It won't be a problem that way. Jammu Pradesh would be always welcome for all these people here. And as far as Kashmir, नमस्ते सभी दर्शकों को। एक और एपिसोड जम्मू प्रदेश के साथ आज मैं फिर शिवानी वैद आपके सामने प्रस्तुत हूँ और इस समय हमारे साथ एडवोकेट अजय जी एज अ गेस्ट हैं। अजय शाही जी हमारे गेस्ट, वन मोर गेस्ट स्पीकर, एंड ही इज एन एडवोकेट जैसे मैंने बताया एंड अ वेरी वोकल एक्टिविस्ट फॉर जम्मू प्रदेश। अजय जी के बारे में उन्हीं से जानने के लिए अजय जी को मैं बोलती हूँ। अजय जी, प्लीज टेल मी मोर अबाउट योरसेल्फ। I am Ajay Singh Sahi, advocate JNK High Court, and Colonel Sahi's son. He himself was also a lot, into having a state. He always had this. He used to write a lot of articles in Kashmir Times when Ved Basin Saab was the editor. Okay, And उनके articles होते थे which were generally not liked by Mr. Basin because obviously he had the bent of mind that side. But he कभी was quite आपका भी vocal हाँ। about Jammu and Jammu people of Jammu region, because having during his service and army operations, he always thought कि it would be better if Jammu is made a state. So तब से ही मेरे भी दिमाग में यही चलता था। हम भी क्योंकि बाहर ही पढ़े सारा, our education till class 12th was out of the state, J&K. So I started my education in Jammu. Joined my MMM college after doing my 12th class in Assam from KV number 1 Tezpur, Assam. And thereafter, this always was in the back of my mind because I used to get perturbed seeing these people roaming around in Jammu, and it always gave a bad feeling कि why these people are freely moving around, settling around us especially, and what interest they have staying in Jammu or burning the hills of Jammu and occupying land illegally, encroaching our lands. Like you very well know Bhatindi, how it has come up. Yes. These were all we used to see from our rooftops. They were burning the forests. Every night we used to see one odd forest, one area or the other burning. And slowly these people, they settled, and they settled along with the Kashmiri chief minister, who had made a very big mansion for himself at that site only, and he is surrounded by his own men till date. Anyway, this was quite a irritating thing for me. Yes. This is what I'm saying, Ajay जी। Till date, we are सपोर्ट था उनको, तभी उनकी सेटलमेंट यहाँ पे हुई जी। हाँ, क्योंकि पावर उनके हाथ में थी उन दिनों, वो स्टेट थी जी। And they, at their back end call, they used to move the forces. They used to use government machinery, whether it was the revenue authorities, whether it was the police forces, and also the executive, which was also under their control at that time. They badly misused this machinery, and they ensured that a settlement of Kashmiri Muslims, especially, is settled in Jammu, which they in fact they were successful in doing so. एक टाइम तो मैडम ऐसा आ गया कि हम there was a feeling in Gandhi Nagar, Shastri Nagar, Satwari, adjoining areas, Trikuta Nagar, that यहाँ से हम लोग शिफ्ट हो जाते हैं, पंजाब चले जाते हैं सारे, क्योंकि ये लोग जिस हिसाब से इधर जिस तादाद में ये लोग आसपास सेटल हो रहे हैं, they can do anything. क्योंकि शुरू से इनका बेंट ऑफ माइंड तो पाकिस्तान की तरफ ही रहा हुआ है। ये लोग they change their mindset anytime. They are chameleons in a way. When they change things, you never know what they are going to do. Today also, when they feel that they are in power, but they don't have power, so they have stooped to such a low that every week, 4 or 5 days, this guy is there, and touching the feet of the relevant leaders to ensure that statehood is granted to him. And obviously, once
the statehood is granted, they are again going to change their colors, and again they will be doing what they were doing previously. जी जी अजय जी, मैं आती हूँ इस बात पे। सो यू टोल्ड अस कि जम्मू प्रदेश आपके दिमाग में कैसे आया बिकॉज ऑफ योर फादर्स इंस्पिरेशन एंड इन्फ्लुएंस। So that's very nice thing. That your father was a Fauji and a very patriotic and very loyal towards his nation. So of course I can understand your upbringing उस तरह की थी। At the same time, as you said कि उन्होंने अपने घर बनाए यहाँ पे आके देवर ऑक्युपाइंग आवर लैंड्स, पर दुख तब होता है जब हम वहां जाके कोई लैंड ऑक्युपाई नहीं कर पाते थे और वहां पे कोई घर नहीं ले पाते थे। बिकॉज माई अंकल ही वॉज JKS ऑफिसर। तो जब दरबार मूव था, द 6 months व्हेन ही यूज्ड टू स्टे देयर, तो माई आंट यूज्ड टू टेल मी कि जब हम कोई सब्जी भी लेने जाते थे तो हमें वो टच सब्जी को भी हाथ नहीं लगाने देते थे। दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। तो हम वहां पे अगर अपनी नौकरी के लिए हम लोग डोगरे वहां जाते थे तो उनके साथ ऐसा व्यवहार होता था। तो नेचुरली, और वो हमारे देश में आके इस तरह बसे, तो दैट इज समथिंग वेरी डिसहार्टनिंग। अब मैं यही आपसे अजय जी, मेरा अगला सवाल होगा कि जम्मू एज अ सेपरेट स्टेट, कितना उसमें पोटेंशियल है? इज इट रियली डिपेंडेंट ऑन कश्मीर? जम्मू एज अ सेपरेट स्टेट कितना फ्लरिश कर सकता है और कितना इंडिपेंडेंटली ग्रो कर सकता है? थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। मेरा यह मानना है कि जम्मू विल डेवलप बाय लीप्स एंड बाउंड्स वंस इट इज मेड ए सेपरेट स्टेट। पहली बात, इन लोगों के चुंगल से हम बाहर निकलेंगे, और दूसरी बात कि यहाँ पे लोग एक ही मेंटेलिटी के हैं, देश के साथ जुड़े लोग हैं, और हमारी यहाँ पे जितनी भी इंडस्ट्री जो अभी तक चल नहीं पा रही, ये बढ़ेगी, अच्छी चलेगी, क्योंकि वंस दिस स्टार्ट्स, पीपल इन पंजाब विल आल्सो ट्रेड विद पीपल ऑफ जम्मू। इनकी जो भी इंडस्ट्री हम लोग लगाते हैं फेल हो रही है, क्यों? वो इसलिए हो रही थी कि यहाँ हम लोग एक बाउंड हो गए थे, बाउंड लेबर की तरह हो गए थे कि कश्मीर को ही माल बेचना है और कहीं नहीं जाना यहाँ से। कश्मीर एज ऑफ डेट is more inclined towards the other side and Delhi. इनको माल तो वहां से मिलता रहेगा और हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। Let them progress the way they want to progress. They are surviving on their tourism and India is feeding them that they are okay. यहाँ पे भी टूरिस्ट स्पॉट्स डेवलप तभी होंगे जब हमारी अपनी सरकार होगी। हम अभी 25-30 MLA भी जिताएंगे, CM वहीं का आके बैठेगा सिर पे, तो ये तो बात कुछ हजम नहीं होती। हमारी ना इनसे शक्ल मिलती है, ना अकल मिलती है, ना रहन सहन मिलता है, ना रिलीजन मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता इन लोगों के साथ। पिछले 70-75 सालों से इनके साथ खाम का जोड़ के रखा हुआ जम्मू वालों को। वाई दिस हैज टू बी अमेंडेड। आज अगर हम देखें लद्दाख को, लद्दाख इज प्रोग्रेसिंग, लद्दाख इनके चुंगल से बाहर आ गया हुआ है, उनकी अपनी सरकार बनेगी या बनी हुई है। तो उसी को हम अगर देखें तो हम भी अब सोचते हैं कि जम्मू प्रदेश अगर कार्व आउट हो जाए, so it would be a wonderful thing to happen, and people of Jammu and the students who are running around, leaving Jammu, going to Bangalore, going to Pune, going to Chennai for work, or Delhi or Gurgaon, they will also think कि भाई हमारी अपनी बन गई हुई है तो यहाँ भी काम करेंगे, यहाँ पे इंडस्ट्रीज बनेंगी, यूनिवर्सिटीज बनेंगी, जो चीजें होंगी, टूरिज्म बढ़ेगा। तो आई फील कि डेवलपमेंट जम्मू हैज अ बिग स्कोप मैम। एक्चुअली अजय जी, आज मुझे अपॉर्चुनिटी मिला था डायरेक्टरेट एम्स से मिलने का। तो आई वेंट इनसाइड द बिल्डिंग एंड आई सॉ द एम्प्लॉयमेंट, कितना अपॉर्चुनिटी मिला है वहाँ के लोगों को। ये भी बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह की और अपॉर्चुनिटीज भी आने की पूरी संभावना है अगर हम जम्मू एज ए सेपरेट स्टेट रहे। सेम वे अजय जी, जैसा आपका थॉट है, जैसा मेरा थॉट है, या मे बी कुछ और, हम मुट्ठी भर लोग ही हैं जो जम्मू एज अ सेपरेट स्टेट की बात करते हैं। Most of the people, they are not in favor of this. Recently we have seen the protest for the statehood and वो हमारे जम्मू के लोगों ने ही किया। आप बताइए, आपका क्या मैसेज है उनके लिए, आपका क्या थॉट है इसके लिए, प्लीज। मेरी ये थॉट है कि जम्मू के लोगों ने नहीं किया वो प्रोटेस्ट। ये एक लिमिटेड सी सोसाइटी है, ये 10-12 लड़के हैं। They 6 of them are affiliated to some party which finds favor in Kashmir only. ये राजपूत सभा करके इन्होंने बनाई है, इन्होंने 6 लड़कों ने मिलके, और ये 6 थे, 50 जर्नलिस्ट थे, 60-70 खड़े थे। That was their protest. They can make noises, they can stop traffic, trouble the people, that is all they are doing.
दे डोंट रियलाइज कि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट मांग रहे हो तो आप क्या मांग रहे हो. दे शुड हैव सम एंड सी कि भाई अगर ये मांग रहे हो तो आपके सिर पे कश्मीर का ही बंदा बैठा रहेगा, जम्मू का सीएम नहीं बनने वाला, वो कभी नहीं बनेगा. और आप महाराजा के नाम पे ये सब अपनी पॉलिटिक्स चला रहे हो, तो दे शुड रियलाइज कि महाराजा जी भी नहीं रहे और जेएंडके भी नहीं रहा स्टेट आज की डेट में. तो पास्ट में जीना बंद करें, आगे का सोचें, जम्मू को कैसे बढ़ाना है उसका सोचें. जम्मू को स्टेटहुड के लिए लड़ना है तो rather than fighting for a JNK, or then they will start cribbing again for Ladakh also. तो Yes. आप अभी try to impose yourself on all these people. Ladakhis are happy. They don't want you. You also don't want them. अपना अपना जियो, खुशी से जियो. Same goes for Jammu and same goes for Kashmir. कश्मीर के भी people कुछ जो पढ़े लिखे होंगे ना, वो भी खुश होंगे. Yeah, there are few Kashmiris, even I am in touch with them, and they also want Jammu. अगर डोगरों को उनका हक मिलता है, एक अलग स्टेट बनता है तो you're very right. जो लिटरेट और समझदार लोग हैं कश्मीर के, they are also in favor of this. अजय जी क्योंकि आप एडवोकेट हैं, जुडिशरी जम्मू कश्मीर लद्दाख की एक है, क्या इससे कोई इफेक्ट पड़ता है वर्किंग में या कोई डिसीजंस लेने में? आप बताइए, क्योंकि टेक्निकली आप मुझे ज्यादा समझा सकते This is if we have our own government and if हैं. after formation of Jammu state, Yes. I feel if Jammu state is formed, which should be done, जी. Jammu is going to have its own set of elected people Okay. and its own chief minister, हम्म. its own machinery to function as a government. हम्म. So it तो would be जुडिशरी much. जुडिशरी भी अलग हो सकती है, जैसे राइट नाउ नहीं, जैसे judiciary लद्दाख की continues this way. जुडिशरी. हाँ हाँ. Today राइट. also, as we call High Court, as this is High Court of Jammu, Kashmir and Ladakh. जी. So That this is what continues. It won't be a problem that way. Only change would be like जम्मू कश्मीर पुलिस है तो वो जम्मू पुलिस हो जाएगी, वहाँ कश्मीर पुलिस हो जाएगी. लद्दाख पुलिस अभी बन गई है, वहाँ अलग लद्दाख पुलिस चल रही है. So जी. it would be on that line only. I feel कि if it is done, if it doesn't done, it would be best for Jammu region, Jammu Pradesh would be always welcome for all these people here. हम्म. And as far as Kashmir, whether it is made a UT or a state, that is to be seen by the center itself. Because what I feel कि Kashmir would be too small to make it as a state. It should continue. It should be allowed to continue as a union territory जी. only. And I feel it should be a union territory to be controlled by the center only, like it is today. Because we can't, give them a field because it's a border area, and if they are given full charge, anything can happen. Happen. People in Jammu, जैसे कई लोग कहते हैं ਅਸੀਂ अगर ये देश छड़िया ते कश्मीर साढ़े हाथों निकल जाना है. निकल फिर जाना. आई आस्क दिस पीपल कि भाई आपकी वजह से रुका हुआ है क्या, कि जम्मू को जोड़ के रखा हुआ है तो कश्मीर तभी नहीं निकला हुआ. ये तो हमारी फौज ने रोका हुआ है, वहाँ फौज बैठी है हमारी, वो बाद में भी बैठी रहेगी, छोड़ेगी नहीं वो तो जैसी आर्मी हमारी भी है बाद में भी रहेगी. और वी कांट गिव देम फील्ड कि भाई आप खेलो अपना गेम as they have been doing previously, so they can't be relied upon as yet. Yes. So I think Kashmir should be continued as a UT and Jammu को आप प्रदेश बनाओ, एक स्टेट बनाओ. Jammu is large enough area. Yes. Kashmir is a peanut that way. कुछ भी नहीं है वो एरिया. अजय जी, यू आर वेरी राइट. लोग यही समझते हैं कि उसको खुला छोड़ दिया तो निकल जाएगा हाथ से. एनी हाउ इफ ये मेरे को हैरानी होती है जब जम्मू वाले भी ऐसा बोलते हैं. अजय जी, आपने बड़ा एहसान किया है भाई जम्मू वालों ने कि कश्मीर आपकी ही वजह से हाथ से नहीं निकल रहा. अरे आप anyway. हाँ. अजय जी, डोगरास जो हैं हमेशा से नेशनलिस्ट रहे हैं, नेशनल पार्टी को वोट करते रहे हैं, जो नेशनलिस्ट होती है पार्टी, ठीक है, जैसे इस बार भी हमने We can't deny एट द that. सेम टाइम दुख होता है जब सीएम फिर भी ऐसी पार्टी का बनता है जो नहीं डिजर्व करता या जिसका नहीं होना चाहिए. They are still ruling on us. So that's why we are urging, we are
demanding for Jammu as a separate state. But अजय जी, मैं आपसे फिर से वही बात कहूंगी, हम जैसे लोग मुट्ठी भर हैं, जम्मू के लोगों में वो थॉट प्रोसेस नहीं है, इतनी अवेयरनेस नहीं है, दे आर ओके विद कश्मीर, दे आर नॉट इन दैट थॉट कि हम कभी अलग हो सकते हैं। उनके लिए, इन जनरल पब्लिक के लिए, जनता के लिए आपका क्या संदेश रहेगा कि हमें कैसे उनको अवेयर करना है, उनको जगाना है, क्या हमें करना चाहिए कि वो इस बात की अहमियत को समझे कि जम्मू अलग होना चाहिए? प्लीज बताइए। मैं कभी भी ये बात छेड़ता हूँ, कहीं भी छेड़ता हूँ, पीपल ऑफ जम्मू एग्री होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। हम्म। बट हम्म। आप इसे कहें कि इनिशिएटिव कम है, गट्स कम है, या ऐसा हो नहीं सकता, वो रीजन ये तब आता है क्योंकि हमारी जो हम पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस है जिसको हम जिता रहे हैं, यहाँ से जितने एमएलए हमारे बन रहे हैं, दे आर नॉट गिविंग इट ए क्यों। जी। अगर इन लोगों का सपोर्ट हमें मिले, अगर सपोज जैसे बीजेपी ही आ रही है आजकल, बीजेपी की सपोर्ट मिले, तो देयर इज नो रीजन व्हाई जम्मू प्रदेश ना बने। द डे दिस हैपेंस, आई थिंक इट विल नॉट बी लॉन्ग टाइम कि बिग और डील। लगे कि ये जम्मू स्टेट बन जाएगी। तो वी हैव टू प्रिवेल अपॉन द पार्टी फॉर whom we are voting for, कि why this is not happening. I remember one of my friends, अंकुर, जिसने एकजुट जम्मू बनाई थी और काफी देर चलाई। Today he is also in the party, बीजेपी में ही है वो। And it's not that कि his thought is over. It's just एक सीढ़ी अलग से चढ़ी है कि उनको जाके थोड़ा समझाया जाए कि why this is not happening. It should happen. So many other Ankurs have also joined the party, and things are in pipeline. This thought process is on, and we are connecting to connecting Bhadrava also to Himachal, and a big highway is coming up. Things are going in the right direction. I don't think it will be long when Jammu Pradesh is formed. Of course, people like you are there to talk about this, to fight for this, अजय जी। और बहुत अच्छा लगता है, मैं आई नेवर न्यू अबाउट यू दैट यू, आपके बारे में पता नहीं था कि आप जैसे भी हैं जो जम्मू प्रदेश की बात करते हैं। व्हेन आई केम टू नो अबाउट यू थ्रू नीरज, आई वाज सो हैप्पी, एंड ही टोल्ड मी कि आप बहुत सालों से जम्मू प्रदेश की बात करते हो, इतना मुझे खुशी हुई। बट यस, ऑफ कोर्स अजय जी, मैंने आप इनफैक्ट अपने चैम्बर में भी बोर्ड लगाया हुआ था जम्मू प्रदेश पीपल मूवमेंट करके, और मैंने यहाँ थोड़ा सा गेट टुगेदर भी अपने करता रहता था ऑफ एंड ऑन with like minded people who यस are living around the area in Gandhinagar. जी, So that is still on. But वही है हमारी, हाउ मतलब यू समझो स्लोली नुक्कड़ स्लोली मीटिंग्स ही स्टेप, हैं, बट हाँ, वी हैव टू टेक इट। फर्दर। हमने बैनर्स भी बनवाए थे, दो चार लगाए थे, तो जी। आई थिंक ये करना पड़ेगा, थोड़ा हाईलाइट तो करना ही पड़ेगा, बैनर्स ही सही। बाकी नहीं मीडिया अजय तो जी, वी आर ट्राइंग टू डू व्हाटएवर, यस, एंड in Facebook also I revert people and tell them why this is not coming up, it should come. राइट अजय जी। सो उसी के सपोर्ट में थोड़ा सा हमारा भी ये छोटा सा कोशिश है, इसी तरह चैनल बनाया है और आप जैसे लोगों का साथ हाँ थॉट जी, चेंज कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी है मैम। लाइक डॉक्टर विकास पादा भी हैं, वेरी अपना गुड। पटियाल साहब भी हैं, जी बिल्कुल। and अंकुर, many people are here. मैनी पीपल, We मैनी can पीपल आर, always sit down and chart out things how to take this movement forward, and at the end of the day people of Jammu are going to gain a lot of this, gain a lot if Jammu Pradesh is formed. एक्चुअली अजय हमारे जी। बच्चे जो बाहर जा रहे हैं वो भी हाँ, बंद होगा जाना। बंद अभी हो आप त्रिकुटा नगर ही देखिए, वो ओल्ड एज होम हो गया, जाए, सारे बच्चे बाहर चले गए हैं, कोई जॉब के लिए चला गया, कोई पढ़ाई के लिए चला गया, कहते इधर कुछ है ही नहीं, पता नहीं अपॉर्चुनिटीज नहीं चला, है। हाँ, अपॉर्चुनिटीज भी नहीं है, और द वे पॉलिटिकल थिंग्स आर मूविंग, यू त्रिकुटा नगर के सराहना ही वो हिल है जहाँ पे ये सारा सेटल। तो अच्छा लगा आपसे बात करके, आपका जम्मू प्रदेश की बनाने की तरफ जो कोशिश, जो छोटी छोटी स्टेप्स आप ले रहे हैं, वो जान के बहुत अच्छा लगा। तो इसी तरह आप लोगों को अवेयर करते रहिए, जम्मू प्रदेश की बात करते रहिए। लेट्स डू इट टुगेदर। कहीं भी जरूरत होगी तो हम एज ए यूनाइटेड वी स्टैंड एज ए टीम, एंड ऑफ कोर्स लेट्स टॉक अबाउट मोर, लेट्स टॉक अबाउट जम्मू प्रदेश एज वोकल एज वी कैन। तो अजय जी, इसी के साथ मैं ये एपिसोड का अंत करती हूँ और दोबारा से आपसे जुड़ूंगी, आपसे और जम्मू प्रदेश के बारे में जानना चाहूंगी। इसी के साथ अभी के लिए नमस्ते अजय जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।